Hey student, I am Komal Kour from Regent Academic Team. So today we're gonna complete the rest part of our chapter that we were doing in our previous class. It was about two story of flying, and the chapter we have not yet completed. Today I will complete this chapter, his first flight. And till that I have made you understand. I hope you got it. And let's go ahead and I'm gonna read out and I'll try to make you understand in the way. Ga, 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 he cried, begging her to bring him some food. Gaw, gaw, ah, she screamed back derisively, but he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of a fish and was flying across to him with it. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her mother, near to her as he flew across. So what does it? Yeah, ga ga ga. You can see the scream of a little seagull. Little seagull. He was begging to his to just get some food because you know that since last night he has not eaten anything. So that's why he was telling his mother or family to bring him some food. वो डेरिसिवली ये बोल रहा है एक अपनी मदर की तरफ और स्क्रीम कर रहा है कि उसकी मदर जो है उसको देखे और ये करे, उसको खाना ला कर दे, क्योंकि वो होता है ना कि कोई पिघले ना पिघले मम्मी पिघल जाएगी. दैट वाज द थिंग. तो उसकी मदर उसको एक मैनर से देखती है जो इग्नोर करने वाला, उसको स्टूपिड वाला मैनर से देखती है कि खुद तो उड़ नहीं रहे हो और बेग कर रहे हो खाने के लिए. तो दैट इज़ द थिंग. But he kept doing that the same thing. He was calling his mother and his father and family about that food. तो but after some time वो just एक joyful scream उसने दिया, मतलब एक joyful एकदम scream जोर से वो चिल्लाया, because he has seen something. What he has seen, उसने देखा कि एक mother है, वो पीस ऑफ फिश अपने मुंह पे दबा के, अपने बीक में दबा के वो उसकी तरफ फ्लाई ऑन कर रही है. एंड दैट ही गॉट अंडरस्टैंड दैट माई मदर इज़ देयर टू कम एंड फीड मी अप. तो वो अपनी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बहुत ज़्यादा ये अपनी माँ की तरफ आगे की ओर बढ़ने लग जाता है, अपने पिट को वो टैप करने लग जाता है रॉक में. यू कैन इमेजिन दैट अ लिटिल सीगल who is really very hungry and he just saw his mother is coming towards him, and that's he going ahead and ahead and tapping his feet and just ready to just feed just get that food. तो ऐसा वो टैप कर रहा है, वो नियर आने की कोशिश कर रहा है अपनी मम्मी के नियर और नियर, कि ताकि वो जो फ़िश है जिसके कारण उसे भूख लगी है, तो बोले ना कि जब भूख लगी हो तो आपको नमक रोटी भी मिले तो बहुत टेस्टी लगता है. बस वही बात है कि इस बच्चे को भूख लगी है. दैट्स वाई ही इज़ वेरी मच एक्साइटेड अबाउट द फूड जो उसकी मदर अपने बीक में लेकर आ रही है. बट वेन शी वॉज जस्ट ऑपोजिट टू हिम, शी held her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. He waited a moment in a surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at her face. With a loud scream, he flew outwards and downwards into the space. Then a monster terrorized him, and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment he felt his wings spread outwards. The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. So what just happened when he saw his mother coming towards him? जब वो उसकी मदर उसकी तरफ आ रही थी, बट वो क्या मदर जो है उसके आ रही है, उसके सामने है, बट वो जो अपना ये जो विंग्स है ना उनको मोशनलेस उन्होंने कर लिया है. वाई? बिकॉज वो चाह रही है कि जो उनका बेबी है वो और आगे आए. तो ही कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हिज मदर इज़ ट्राइंग टू डू विद हिम, बट ही इज़ वेरी मच एक्साइटेड. ही वांटेड टू जस्ट ईट दैट फिश. तो वो एक मोमेंट के लिए वो
वो सोचता है और आगे जाए और आगे जाए, एंड हिज मदर इज़ नॉट कमिंग नियर टू हिम। तो दैट वाज द मोमेंट कि उसे समझ नहीं आ रहा व्हाट इज़ दिस हैपनिंग, बट ही वाज मैडन फॉर द फ्रॉम द हंगर, ही इज स्टार्विंग एंड ही वांट दैट फूड। तो व्हाट जस्ट हैपेंड, ही जस्ट टुक अ डाइव जस्ट टू टेक, समझ लो उसकी माँ ऊपर है एंड ही इज़ नीचे इन अ रॉक, उसकी माँ मोशनलेस में थोड़ा थोड़ा उड़ रही है और उनके बीक में ये है मछली है, एंड दैट इज़ द मोमेंट ही ट्राई टू डाइव फॉर दैट फिश। वो फिश के लिए डाइव करने की कोशिश करता है, बट व्हेन ही डाइव तो वो फिश तो उसे नहीं मिलता, बट ही जस्ट गॉट डाउन डाउन डाउन, वो ऊपर पहाड़ से नीचे गिरने लग जाता है, डाउनवर्ड्स ही फील इन स्पेस। थोड़ी देर के लिए क्या होता है, मतलब एक टेरर उसके अंदर आ जाता है, हार्ट जो है वो स्टिल हो जाता है, ही कुड नॉट हियर एनी थिंग, कुछ उसे सुनाई नहीं दे रहा, बट एट दैट मोमेंट, but actually we know that he is a kind of a bird, he know how to fly. We are a human being, we know how to speak, we know how to walk, but it is in us inbuilt quality आप बोल सकते हैं, जो कि ये inbuilt quality होता है, that birds has that inbuilt quality that they can fly. इफ़ नॉट, एक हो सकता है कि कुछ स्पेशल हों जो नहीं फ्लाई कर पाते, पर इनके अंदर एक क्वालिटी इनबिल्ड है। तो सडनली क्या होता है, जब हम गिरने लग जाते हैं तो हमें ये फील होता है कि हम खुद को संभाल सकते हैं। एट दैट वेरी मोमेंट ही अंडरस्टूड दैट, और ऑटोमेटिकली जो उसके जो विंग्स होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं। जब वो स्प्रेड हो जाते हैं और वो फ्लैप करने लग जाते हैं, ऑल्दो उसे बहुत ज़्यादा टफ लगता है वो काम, वो जो हवा है जो ऊपर से नीचे की ओर गिरना, वो जो उसके ब्रेस्ट पे और उसके फेदर पे जो हवा में लग रही है, उसके स्टमक पे वो जो हवा लग रही है, और जो उनके विंग्स जो पे हवा मतलब होता है ना अटैक कर रही है, समझ लो ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, ग्रेविटी का फोर्स है, और सडनली जो उसका विंग्स है वो खुल जाता है और वो फ्लैप होने लगता है, और अचानक से वो हवा को काटते हुए वो उड़ने लग जाता है। दैट इज़ द रियल मोमेंट फॉर दैट सीगल, दैट ही डिड इट। जिसके लिए वो डर रहा था, जिसके लिए वो सोच रहा था दैट ही कुड नॉट, बट ही कैन, ही हैड द एबिलिटी, बट हु नोज अबाउट दैट, हिज फैमिली, हिज मदर, हिज पेरेंट्स, ऑल द वाइल दे नो अबाउट दैट ही कैन फ्लाई। दैट्स वाई ये बहुत रिस्की है। यू कैन से दैट कि उसकी मदर ने उसे नीचे गिरा दिया, बट येट हिज मदर नोज अबाउट दैट कि वो उड़ सकता है। दैट्स वाई कभी कभी हमें ऊपर से धक्का दे दिया जाता है, दैट डजंट मीन कि आप ऊपर से छत से धक्का दे दो आप उड़ने लग जाओगे, बिकॉज यू हैव नॉट दैट काइंड ऑफ बोल सकते हैं फीचर, आपके अंदर उड़ने का फीचर नहीं। पर ऐसा किसी चीज़ के लिए आपको साइंस का स्ट्रीम दे दिया गया, तो आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स ये जानते हैं दैट यू हैव द कैपेबिलिटी टू डू दैट साइंस स्ट्रीम, दैट्स वाई यू हैव गिवन दैट साइंस वन। So these are some things that you can imagine. So what is the feeling of that little seagull? Okay, he could feel the tip of the wings cutting through the, वो एकदम उसे फील करने लग जाता है उस हवा को, जैसे वो कट कर रहा है और वो फ्लैप कर रहा है अपने विंग्स को, एंड गोइंग अहेड and just flying with his wings. He was not falling headlong now, he was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. And then he flapped his wings once and he soared upwards. गा 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 गा, मतलब एक तरह का उनका चिड़ियों का जो आवाज़ होता है. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over him screaming. He saw his two brothers and his sister flying around him, courting and banking the soaring and diving. So what just happened? After just taking that dive, when he started to just flap his wings, he just cutting the all the air and just going ahead, upwards, downwards, ऊपर नीचे. Now he is not afraid. नाउ हिज फियर हैज़ गॉन अवे. वो अफ्रेड नहीं है, अब उससे डर नहीं लग रहा, बट उसे थोड़ा डिजी लग रहा है, बिकॉज यू नो गाइज दैट ही हैज़ नॉट ईटन फूड सिंस लास्ट नाइट, दैट्स वाई ही इज़ फीलिंग लिटिल डिजी, बट स्टिल ही इज़ फ्लैपिंग हिज विंग्स, ही इज़ जस्ट गोइंग आउटवर्ड्स डाउनवर्ड्स एंड जस्ट स्क्रीमिंग. मतलब एक जो पंछी की आवाज़, जैसे हम लोग ची 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 बोल सकते हैं, गा 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 बोल सकते हैं, दैट काइंड ऑफ आवाज़ इज़ स्क्रीमिंग. तो उसने ये फील किया कि उसकी मदर जो है, मदर तो बड़ी होंगी तो उनके जो विंग्स होंगे, उसके फ्लैप जो होंगे वो ज़्यादा साउंडी होंगे, तो
उसकी सामने से उसकी मदर गुजरती है और वो उन्हें स्क्रीम देती है, मतलब समझ लो एक शाबाशी वाला लाउड नॉइज़ देती है, तो वो इसको अपनी मदर को आंसर में वो सेम स्क्रीम करता है, चिल्लाता है। और मतलब एक होता है ना शाबाशी वाला मोमेंट, दैट वाज द प्राउड मोमेंट फॉर द पेरेंट्स दैट माय सन हैज़ डन दिस, माय डॉटर हैज़ क्रैक्ड दैट। तो दैट वाज द रियल मोमेंट फॉर दैट पेरेंट्स। एंड उसके फादर भी उसके सामने आ जाते हैं, एंड उसके सामने ब्रदर और सिस्टर जो भी है सभी लोग आके उसके आसपास फ्लाई करने लग जाते हैं, उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने लग जाते हैं, उसे अच्छा अच्छा बोलने लग जाते हैं। दैट द फैमिली who were just not taking care of him since so long that he was alone in the lace, no one is talking with him, no one even giving food to him. But yet now what just happened when he just took his decision, नॉट डिसीजन मीन्स ही जस्ट क्रैक्ड हिज वे, वो उसने काम कर दिया जो उसे करना था, जो उसकी फैमिली चाह रही थी कि वो करे। देन फैमिली गॉट टू सब साथ हो गया, सब एक्यूमुलेट हो गए। वाई? बिकॉज फैमिली को पता है दैट इज़ ही द माई सन एंड माई डॉटर इज़ गोइंग इन अ राइट वे, दैट इज़ द टाइम दैट वी नीड टू सपोर्ट हिम। जब वो कहीं पीछे हट रहा होता है तो उस समय वो डांटते भी हैं और बोलते भी हैं कि नहीं तुम्हें वो करना है जो सही है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड एट दैट टाइम। और फैमिली सब साथ हो गया, एक्यूमुलेट हो गए, स्क्रीम कर रहे हैं उसके लिए, आवाज़ दे रहे हैं और उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट always been able to fly, and commended himself to dive ashore and curve shrinking sheerly. तो what just happened, he forgot that कि उसे लगता था कि वो fly नहीं कर सकता, his wings will not support him up to go in a deep dive and all। वो सारा कुछ वो भूल जाता है, वो एकदम लीप मतलब समझ लो एक कलाबाजी करना है उसमें आसमान में, वो इधर से उधर ऊपर नीचे उड़ रहा है, डाइव ले रहा है इधर, मतलब अलग अलग तरह के वो पोस्चर्स में कर रहा है, वो कभी हाई जा रहा है कभी लो जा रहा है, एंड ही इज़ कम्प्लीटली फीलिंग दैट मोमेंट, और वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा है। ही वॉज नियर द सी नाउ, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, फेसिंग स्ट्रेट ओवर out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him with little rises moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. So now he is over the sky, नीचे जो वो सॉरी ओवर द सी, वो सी के सामने है, एंड एकदम स्ट्रेट की सी के सामने वो उड़ रहा है, फेस कर रहा है, वो नीचे जो है वो शी है और वो ग्रीन ओशियन को देख रहा है। दैट इज़ टू वास्ट, मतलब बहुत बड़ा है एंड बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, दैट वो देख रहा है, वो उस तरह से मूव कर रहा है उधर, एंड वो अपनी जो बीक है उसको साइडवेज करके एक प्राउडली सा, एक होता है ना एक काउड करना, चिल्लाना, उस तरह से वो अपनी फैमिली को देख के इस तरह से करता है। हिज पेरेंट्स एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन द ग्रीन flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand in the green sea. His legs sank into it and screamed with the fright, and attempted to rise again, flapping his wings, but he was tired and weak with the hunger, and he could not rise, exhausted by the straight exercise. His feet sank into the green sea, and then his belly touched it, and he sank no further. He was floating on it, and round him his family was screaming, praising him, and their beak were offering him scraps of dogfish. He had made his first flight. So look at the moment that उसके parents, उसके brother, sister, siblings all were landed in the green, वो जो होता है ना ग्रीन सी के ऊपर वो लोग लैंड, वो ऐसे पंछी होते हैं जो डूबते नहीं, वो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, दैट के बतख काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो सारे फैमिली जो है उसमें उस ग्रीन सी में बैठे हुए हैं, फ्लोट कर रहे हैं, एंड दैट वाज द मोमेंट दैट ही नीड टू डू द सेम थिंग। नाउ ही जस्ट नो हाउ टू फ्लाई, बट ही डजंट नो दैट हाउ टू गो इन दैट सी, मे बी ही इज़ स्केयर्ड, मे बी ही डजंट नो अबाउट हाउ टू लैंड। तो फर्स्ट सभी लोग उसके मतलब तारीफ़ कर रहे हैं, सभी लोग उसे ये बोल रहे हैं नीचे आने के लिए, सभी लोग उसे समझा रहे हैं हाउ टू जस्ट टेक दैट, जब एक लैंड करने के लिए उसे बताया जा रहा। पहले उसने क्या किया, अपने पैरों को अंदर डाला, तो ऑटोमेटिकली द पैर विल गो इनसाइड द वाटर, तो वो पैर जो है वो इनसाइड द वाटर जा रहे हैं।
तो तो उसके जो लेग्स है वो सैंक हो गया, वो स्क्रीम करता है थोड़ा सा। मे बी ही इज़ राइट, ही डजंट नो हाउ टू जस्ट लैंड ऑन दैट, ही जस्ट स्क्रीम्ड इट। एंड देन उसके बाद वो अपने विंग्स को फ्लैप करता है। नाउ ही इज़ टायर्ड, यू नो दैट ही जस्ट टुक अ वेरी लॉन्ग ड्राइव एंड ऑल, सो दैट्स वाई ही बिकेम टायर्ड, बिकॉज वीक है, हंगरी है एंड ऑल दैट। स्टिल वो थोड़ा सा राइज करता है एंड थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाने के बाद क्या होता है, वो थोड़ा सा विंग्स को फ्लैप करने के बाद वो स्ट्रेट आता है, वो एक नीचे ग्रीन सी में उसके बेली जो होता है, आप इमेजिन कर सकते हो उस चीज़ को कि वो पानी से उसका जो बेली होता है थोड़ा टच करता है। अब वो सैंक नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि उसके पैर सिर्फ अंदर जाएंगे, वो बॉडी उसका बहुत ज़्यादा हल्का होता है कि वो उसी में रुक जाएगा। जैसे वो बेली पानी को टच करता है वो और अंदर नहीं जाता, वो वहीं पे रुक जाता है और वो फ्लोट करने लग जाता है, वो विंग्स को बंद कर लेता है और उस जगह पे फ्लोट करने लगता है। सभी लोग स्क्रीम करते हैं दैट ही जस्ट डिड इट। एक होता है ना, एक दैट मोमेंट, द प्राउड मोमेंट फॉर द फैमिली, दैट कोई टॉप कर गया तो एक प्राउड मोमेंट फॉर द फैमिली। तो मिठाइयाँ बांटी जाती है, दैट काइंड ऑफ थिंग इज़ हैपन विद द ह्यूमन बींग्स। बट व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, दैट ऑल द फैमिली मेम्बर इज स्क्रीमिंग विद देयर ओन वॉइस। एंड वो क्या कर रहे हैं, वो जो डॉग फिश, मतलब एक तरह की फ़िश होगी जो उसे ऑफ़र कर रहे हैं खाने के लिए, जो फैमिली उसे खाना नहीं दे रही थी, दैट फैमिली इज़ ऑफरिंग द फूड टू दैट लिटिल बॉय, लिटिल सी गर्ल। एंड यू कैन इमेजिन दैट वे, दैट फैमिली इज़ वेरी मच हैप्पी एंड दे जस्ट फीलिंग द प्राउड ऑन देयर हिज और देयर फैमिली मेम्बर, इस तरह से बोल सकते हैं। तो दैट इज़ द फर्स्ट मोमेंट, दैट हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड ऑल द चैप्टर इज़ just dependent on this little seagull, which you can say that it teaches us lots of things, that you need to take a step whenever you are going to attempt something. So maybe the something, some scary moment will stop you, and it will say you that you cannot do it, but at the moment you have to believe in yourself and you have to do it, because that is inbuilt quality of yours and you can do it. So work hard, go ahead. Thank you.